बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पर। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अहम शख्सियत से हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच और मायानाज फास्ट बॉलर पाकिस्तान के उमर गुल, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन और उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल जो क्रिकेट सिनेरियो है पाकिस्तान का, डोमेस्टिक हो, पीएसएल हो और उसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल टीम की परफॉर्मेंस हो, उस पर हम बात करेंगे। ताहिर खान हमारे साथ होंगे, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और इस वक्त एक बड़े अच्छे एनालिस्ट के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों बल्कि खेल भी रहे हैं, क्या खेल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ प्रोग्राम का हम करेंगे एक गैर मुल्की शख्सियत से। पाकिस्तान में अभी जनूबी अफ्रीका की टीम होकर गई, टेस्ट मैचेस खेले, T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, मुश्किलात के बावजूद आई टीम। तो इसका क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट साउथ अफ्रीका को जाता है। तो वील हैव पोलेट्स्की मुसेकी, द एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट with us to start the program. I'll go straight off to Museki, who is the acting chief executive officer of South Africa Cricket. I spoke to him about so many issues and we have compiled all the answers about the tour of Pakistan, about the current state of the South Africa cricket and what is the way forward. So here, let's hear what Poletsi Museki has to say. Thank you, Asif, for having me, and thank you for this opportunity. Well, you are correct. I mean, we've been through quite a lot of turbulence this last year, just to put it mildly. There has been quite a number of challenges, and unfortunately, they have been quite public in that sense. Cricket is a very popular sport in South Africa, so there's a lot of stakeholders who do have an interest in how the game functions, how the game is run, and they do have quite a lot of opinions, rightly so, because it is like one of the national sports. We have had a number of challenges, but fortunately, because, as I said, because of so many passionate stakeholders that we do have, those challenges have been and are currently being, sorted out. As you correctly point out, like I am currently the acting CEO. I had to replace my predecessor for one reason or the other, but the game does continue, and we are comfortable that ultimately we will come out of these challenges that we are facing, because a lot of people want to make sure that we do come out of them. So we currently have an interim board that's working with our members council just to stabilize the situation, and hopefully in a not too distant period, we will have our annual general meeting where a permanent board will be appointed, But as we speak, I mean, our interim board and our members council have stabilized the situation, are continuing to stabilize the situation. And a lot of dedicated employees that we've got are making sure that the ship does stay afloat. So having said that, yeah, we will come out on the other side. We are quite comfortable that we'll basically stabilize the situation and come out on the other side. But the most important thing, the two boards wanted the tour to happen. So it's always quite helpful if both parties want the tour to happen. I think in the COVID era, it's the responsibility of all the members to make sure that we support each other. Otherwise, cricket will never succeed and will never survive. We will never come out of this pandemic strong if we don't actually support each other, So I'm glad that the two boards actually wanted this tour to happen. And we did everything that we could to ensure that it does happen. I think you might be aware, as an example, literally a day before our guys were supposed to fly out of South Africa, the commercial airline that we're going to use to go to Pakistan decided to suspend flights from South Africa. And that was literally a day before the guys were supposed to fly out. But because of the commitment of the two boards, we actually had with a plan to say, how do we actually get our guys to Pakistan? And fortunately, we did come up with a plan. And as I said, it's all our responsibility as members to make sure that cricket does succeed. And I am glad, all the reports that I'm getting from the guys that side is
The hospitality has been fantastic. The security has been fantastic. So they are quite comfortable. Despite the hammering that your team gave us last week. But everything else besides that has been brilliant. So I'm glad about that. Because both boards wanted this thing to be a success. Thank you very much, Mr. Museki, and we are looking forward to having you again, your team again, and in fact, Pakistan is going to South Africa very soon to play a competitive series again. Thank you very much again. So ये थे मुसैकी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट, उनको आपने सुना। अब हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग की साबिक चैम्पियन टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स गुज़िश्ता सीज़न में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन इस सीज़न में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। और अगर उनकी इंतज़ामिया को देखें तो पहले उनके साथ अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि अब्दुल रज़ाक खैबर पख्तूनख्वा के कोच हैं, इस मरतबा एक मास्टर उन्होंने अपने साथ रखा है उमर गुल की सूरत में। उमर गुल का करियर ख़त्म हो चुका है बैनुल-अक़वामी, लेकिन उनकी याद अभी भी आती है जिस तरह की यॉर्कर्स वो किया करते थे। तो उमर गुल से हम बात करेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच। उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम। आपके सीज़न्स को अगर हम देखें, उसमें अब आप खेल नहीं रहे, लेकिन आप ये बताइए सबसे पहले कि बतौर कोच आप अपनी मोइन भाई का, नदीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पे ट्रस्ट किया एक दफ़ा फिर। और पहले तो पार्ट था, मैं क्वेटा ग्लैडिएटर का एज अ प्लेयर में पार्ट था, लेकिन अभी एज अ बॉलिंग कोच बड़ी खुशी हुई कि क्वेटा ग्लैडिएटर की फैमिली को फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और बड़ी खुशी हुई है और इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द PSL। आई होप कि इंशाल्लाह एक अच्छा स्टार्ट ले लेकर अच्छे, जो मोइन भाई काफ़ी एक्सपीरियंस है, पिछले 5 सालों से सरफराज कैप्टनसी कर रहे हैं, तो आई होप कि अच्छा मोमेंटम बन जाए यहाँ से और लड़के जेल हो के इंशाल्लाह एक अच्छा हम कम्बिनेशन बन के ना एक अच्छा स्टार्ट ले लें। उमर भाई, वाइट बॉल में की अगर हम बात करें तो लसित मलिंगा एक नाम है, लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर किसी फास्ट बॉलर ने नाम बनाया तो वो आप हैं। अब जो तजर्बा है आपका इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर होने का, उम्मीद करते हैं कि आपके जो यंगस्टर हैं, हसनैन हैं, उसके अलावा बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ पे आए हैं इन्हीं लोगों के, हमारे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह इनके साथ खेला भी हूँ। एक तो ये कि इनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। और इंशाल्लाह बिल्कुल यहाँ पे आए लड़कों की हेल्प के लिए। और जो मैंने ख़ुद अपनी जो थ्रू द करियर अपनी एक्सपीरियंस से और जो जितने इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने के लिए मॉडर्न डेज क्रिकेट मैंने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उनके साथ शेयर करूँ। और बाकी ये कि ये सारे टैलेंटेड है, बस थोड़ी सी इनकी हल्की फुल्की ट्यूनिंग करनी है इंशाल्लाह। बाकी तो ये कि जिस तरह ये PSL स्टार्ट होगा, जितने हमारे सेशन होंगे इंशाल्लाह इनके साथ काम करेंगे, ना सिर्फ हमारे क्वेटा ग्लैडिएटर के टीम के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह इनको को ग्रूम करना है। और बस ऐसे ही है कि इंशाल्लाह ये कि इनके साथ काम करके हमेशा से जब मैं टीम में भी था तो मुझे खुशी थी कि मैं किसी प्लेयर की हेल्प करूं और अपनी कुलीग्स की जो टीम में था, तो मुझे काम करने का भी शौक़ है। और ये है कि जिस तरह कल हमारा जो एक सेशन हुआ है तो बड़ा मज़ेदार एक सेशन हमारा, बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सेशन हमारा हुआ है। तो लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह कि आगे भी जो हमारे मैचेस है या प्रैक्टिस मैचेस है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद नोट भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी मैंने उन लड़कों की जो देखी है, जो छोटी छोटी ट्यूनिंग करनी है, जिस तरह मैंने पहले करना कहा, तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और बिल्कुल ना सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बल्कि हम इंशाल्लाह इनको प्रोडक्ट बनाएंगे और आगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये लड़के सर्व करेंगे। ड्यूरिंग उमर गुल का प्राइम कोई उनके करीब नहीं आता था, और जो आपकी स्पेशलिटी थी यॉर्कर, उसको किस तरह से मुंतकिल करेंगे इन यंग प्लेयर्स में? बिल्कुल देखिए, जिस तरह मैंने कल जो हमारा जो सेशन हुआ है, तो मेरे तीनों के साथ बात हुई। और जिस तरह अर्ली मैंने कहा कि इन लड़कों के साथ खेला भी हूँ और लाइक छोटे भाइयों की तरह एक अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो भी कोई हेजिटेशन फील नहीं कर रहे, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ और एक फ्रेंडली माहौल में उनके साथ बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इनसे यही बात कर रहा था कि T20 क्रिकेट में आपके पास
दो ऐसे आपके आप कह सकते हैं कि वेपन होने चाहिए एज अ बॉलर, ऐसे डिलीवरीज होनी चाहिए कि जिस पर आपको अबूर हासिल हो और जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। जिस तरह मैं थ्रू आउट अपनी करियर में खेलता रहा, बाउंसर पे मैंने बड़े आउट किया, यॉर्कर पे, तो उनके साथ इसी यॉर्कर वगैरह पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और जिस तरह की इनकी पेस है 140 प्लस, जिस तरह मैं करता था 140 प्लस पे अगर आप यॉर्कर करते हो तो ये बड़ा लीथल हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे जो अपकमिंग जो मैचेस है, प्रैक्टिस मैच है या आगे भी जो हमारे जो ग्रुप के मैचेस है, तो इंशाल्लाह डे बाय डे इनके साथ काम करेंगे। और आई होप कि ये लड़के हैं, इनको काफ़ी इनमें पोटेंशियल है। बस तौर से ये है कि इनको बताना, इनको कॉन्फिडेंस देना। बेसिकली काम है, हमारा काम यहाँ पे है एज अ बॉलिंग कोच, मेरा काम है कि इनको एक कॉन्फिडेंस दूँ और इनको ऐसे करो कि यार इनको पता होता है कि मेरा जो वेपन है, जो मेरा जो लीथल बॉल है, उस पर इनको अबूर हासिल हो। अच्छा उमर, दौरे हाजिर के जो टॉप बॉलर हैं, डेल स्टेन, इस वक्त उनको कहा जाता है कि वो बेहतरीन बॉलर हैं। तो उनके क्वेटा ग्लैडिएटर के आने से यकीनन इनकी बॉलिंग काफ़ी मजबूत होगी, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा आपके ख्याल में उनकी मौजूदगी का टीम में? बिल्कुल यार, मेरे ख्याल से ये एक ना सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बल्कि जो हमारे जो दूसरे यंगस्टर उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेल पी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। रेड बॉल, चाहे आप रेड बॉल ले लें या वाइट बॉल ले लें, तो मेरे ख्याल से इससे मुझे भी हेल्प होगी कि उनके साथ मिलके काम कर सके। और प्लस उसकी एक्सपीरियंस और मेरी अपनी एक्सपीरियंस, अपने जो यंगस्टर हैं, जिस तरह हमारे नसीम शाह है, हसनैन है, चिनवारी है, तो आई थिंक अगर हम दोनों की एक्सपीरियंस मिल जाए और उनके साथ काम करें तो ये इन प्लेयर के लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और जहाँ तक टीम की बात करें तो मेरे ख्याल से जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है, मैं तो अभी सोच रहा हूँ, ये तो मोइन भाई के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है कि प्लेइंग 11 में कौन हो, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप हमारे मैं एज अ बॉलिंग कोच में कहूँगा कि हमारे जो पेस बैटरी है उसमें मुझे नहीं लगता किस किस को खिलाना है। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह कि एक अच्छी कम्बिनेशन के साथ हम उतर सके और एक अच्छी कम्बिनेशन बन के इंशाल्लाह हम ये टूर्नामेंट स्टार्ट करें। चलें, ऑल द बेस्ट टू यू उमर गुल, ऑल द बेस्ट टू द इंटायर क्वेटा ग्लैडिएटर्स यूनिट कि वो अच्छा आगाज़ करें। पहला मुकाबला भी क्वेटा की टीम का ही है। तो देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। एक ब्रेक के बाद विल बी बैक विद ताहिर खान। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आपने दो शख्सियात की बात सुनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट और उनके बाद उमर गुल, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही कह लें उनको भी आप, वो बॉलिंग के इस वक्त चीफ हैं और जिस तरह की बॉलिंग उमर किया करते थे, उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो यंग बॉलर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास हैं, नसीम शाह हों, उनके अलावा हसनैन हैं, उनके अलावा उस्मान शिनवारी हैं, तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लीग का तो है ही। बात करते हैं, अब ये हमारा सेगमेंट है, इसमें एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ताहिर खान पाकिस्तान के लिए 103 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। ताहिर ने 2016 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले PIA की इन्होंने नुमाइंदगी की। पाकिस्तान टीम के करीब आए, स्क्वाड में ज़रूर आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेल सके। बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर अपने टाइम के थे, आज भी खेल रहे हैं, अब वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्रिकेट खेल रहे हैं आज आप आजकल? जी आसिफ भाई, क्रिकेट आपको पता है वेटरन्स क्रिकेट बड़े ज़ोरों शोर से, और वो तो अपनी यंग से ज़्यादा टफ क्रिकेट है। यानी 50 के हो गए आप? नहीं, 10 साल कम कर लें। नहीं, वेटरन सुपर वेटरन भी होती है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, सुपर वेटरन्स 50 होती है और उसके बाद भी होती 60। वो भी 3 कैटेगरीज कर दी इन्होंने, 40, 50, 60। हमें कहाँ एडजस्ट करेंगे फिलहाल तो आप तो 40s तक ही रहे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चुप, यहाँ से बात आगे नहीं जानी चाहिए, किसी को आपने बताना नहीं है। अच्छा ताहिर, ये बताइए मुझे कि आपने सुना अभी साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल ने बात की, उमर गुल ने बात की, कैसा दौरा रहा ओवरऑल साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में? पर एक तो जो इंतज़ामात आपने देखे, ओके, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। परफॉर्मेंस वाइज पाकिस्तान जीत गया, यू आर हैप्पी? आसिफ भाई, अगर हम T20 की बात करें तो एक एवरेज परफॉर्मेंस थी हमारी। हम कोई इतनी हाईली रेटेड नहीं कह सकते कि जी हमने टॉप क्लास परफॉर्मेंस की और वाइट वॉश कर दिया, 2-1 से आप जीते हैं।
वो भी मैच ऐसा था कि अगर वो टॉसेस नहीं होती तो वो मैच भी आपके हाथ से चला गया था। 3 रन से जीते, एक मैच 3 रन से जीता। तो मतलब ये तो एवरेज, इसीलिए मैं उसको एवरेज परफॉर्मेंस बोलूंगा। सेकेंडली बात कि आप एज एन ओपनर आपके पास एक ही था और आप मेकशिफ्ट ओपनर से आप जा रहे हो, आप आगे तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप की। आपको देख तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंडली मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं, क्योंकि जो रन्स लेके चलता है, जो 7 ओवर से लेके 14 ओवर तक के दरम्यान का जो खेल होता है वो होता है मिडिल ऑफ द ओवर जो खेलते हैं, सिंगल डबल्स करके जहां उनको बाउंड्री मिलती है वहां वो रन्स करते हैं। यहाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम थी। साउथ अफ्रीका के पास था डेविड मिलर, उसने आपको जब क्लैप्स हुए वो इनिंग्स लेके चला, जब उसको लगा कि हिट आउट करना है वहां से हिट आउट किया, आपको टोटल अच्छा करके दे दिया। हमारे पास सबसे बड़ा अभी तक हम यही ट्राई आउट करे जा रहे हैं, डोमेस्टिक के लड़कों को खिला के जी ठीक है लेकिन क्या परफॉर्म करते हैं। आप जिन 3 ऑलराउंडर्स का आप इशारा कर रहे हैं, हुसैन तलत, आमिर यामीन को कि वो मौका उनको नहीं मिला, उसके अलावा आसिफ अली, उसके अलावा अमाद बट, ये 4 ऑलराउंडर्स, उसके अलावा नवाज को आप ऑलराउंडर्स कैटेगरी में लेंगे, तो ये डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए तो लेके आए थे इनको। आसिफ भाई फेयर इनफ डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पे एटलीस्ट अब हमारे जो नए चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, वो रियली थैंक्स टू हिम कि अब वो परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटराइज कर रहे हैं। लास्ट ईयर की, इस साल की, अब वो लड़कों को चांस दे रहे हैं। अब उन्होंने एक ये भी कर दिया कि जी जो PSL आ रहा है, इस PSL के अंदर हम परफॉर्मेंस मॉनिटराइज करेंगे, उस हिसाब से जो कैटेगरीज हमारे पास मिसिंग है उसको हम लेके आएंगे। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन जो लड़कों को चांस मिलना तो वो चांस अवेल तो करें, चांस थ्रो नहीं करें। हमें साफ नज़र आ रहा है जिस तरह से इफ्तिखार की अगर मैं बात करूँ, उसको एक बनाया जा रहा है, वो नहीं बनने को तैयार है, आप उसको बना रहे हैं। और जब खिलाना था आपको तीसरा T20 तब आपने नहीं खिलाया, आपने आसिफ अली को खिला दिया। तो आसिफ अली ने भी वही काम किया जो इफ्तिखार ने किया। कहाँ से खिलाते हैं? तीसरे वनडे में पता है हुआ क्या आपको? तीसरे T20 में हुआ ये कि 15 के अंदर से निकाल दिया चीफ सेलेक्टर ने इफ्तिखार को, अब खिला लो। अब वो भी तो सुबह के टाइम निकाला है, मतलब उनको बाद में बताया गया, ये जो मुझे भी पता लगा कि बाद में बताया गया। लेकिन देखिए, अगर आपने एक तैयारी करनी है अपनी फ्यूचर प्लान की, तो आप फ्यूचर प्लान में इफ्तिखार को कहाँ देख रहे हैं, आसिफ अली को कहाँ देख रहे हैं, और हुसैन तलत को कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, हुसैन तलत की मैं इसलिए मैं बात करता हूँ, वो लेफ्ट हैंडर है, आपको एक नेचुरल एडवांटेज आपको मिलता है, हिट अच्छी मारता है। अगर वो टाइम दे अपने आप को, वो टाइम देगा तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मिडिल ऑफ द पार्ट आपके जो 4, 5, 6 नंबर हैं, 3, 4, 5, 6, वहां पर आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है। खुशदिल शाह अभी उस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना कि जो फिनिशर आपको नजर आए। ही इज ओनली प्ले ऑन द लेग साइड क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट ऑल ओवर द ग्राउंड होती है, पूरी चारों तरफ ही क्रिकेट होती है। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब जिस तरह से हम चेंजिंग करते जा रहे हैं, सर पे वर्ल्ड कप आ जाएगा तो हम चेंजिंग ही करते रह जाएंगे और दूसरी टीमें अपनी नहीं, अनफिट है ना आपका जो मेन लेफ्ट हैंडर है फखर जमान, वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहे, अनफिट भी रहे, कुछ उनको शाइबा भी रहा था कोविड का, उस वजह से वो न्यूजीलैंड भी नहीं जा सके, तो वो वापस आता नज़र आता है। आप देखिए आसिफ भाई, डिपेंड करता है उसकी फॉर्म, फिटनेस तो है, फिटनेस तो इज सुपर फिट, और फॉर्म की बात है। अब ये PSL पे डिपेंड करता है कि जो लड़के अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए, T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसके लिए, तो वो किस तरह से इस पूरे PSL में काम करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? PSL पे ही हम बात करें तो क्वेटा का मुकाबला है पहला कराची से, कराची डिफेंडिंग चैंपियन, क्वेटा बिल्कुल नीचे लगी हुई टीम थी। अब अगर कॉम्बिनेशन देखें दोनों का, आसिफ भाई कॉम्बिनेशन टू बी ऑनेस्ट ये स्पिनिंग कॉम्बिनेशन में कहूँगा, क्योंकि अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा के पास मुजीब वहाँ पर उनके पास आए हुए हैं, सॉरी कैस अहमद आए हुए जो अफगानिस्तान के हैं, और अगर कराची की बात करें तो मुजीब जल्मी में एग्जैक्टली, अगर कराची की बात करें तो वो आपको मोहम्मद नबी वहाँ आपको एक सरप्राइज पैकेज मिल रहा है जो एज एन ऑलराउंडर आपको वो परफॉर्म करता है। तो इक्वल तो है, लेकिन ऑन द डे क्योंकि ये नए कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं सारे, तो एटलीस्ट 2 से 3 मैच तो इनको लगेंगे अपना एक कॉम्बिनेशन बनाने में। तो लेकिन क्वेटा को एज इसलिए हासिल नहीं है क्योंकि क्वेटा एक तो डाउन है, प्लस जो डिफेंडिंग चैंपियन है दे कम फ्रंट पे आके वो अपना इजाज़त दिफा करेंगे। अच्छा, क्वेटा में अगर आप देखें कि क्वेटा की जो बॉलिंग है, यंग फास्ट बॉलर्स उनके पास हैं पाकिस्तान के, उस्मान शनवारी, हसनैन उनके पास, नसीम शाह उनके पास, उमर गुल की मौजूदगी क्या फ़ायदा देगी इनको? देखिए उमर गुल के डेफिनेटली उमर गुल ने काम किया होगा, और डेल स्टेन तो ऑब्वियसली डेल स्टेन और उमर गुल ये 2 ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं और वन मैन शो रहे हैं। उमर गुल का एडवांटेज हमें मिल सकता है हसनैन की सूरत में और आप शनवारी की सूरत में। मैं अभी नसीम शाह की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आई डोंट नो कि इसकी फिटनेस कैसी है क्या है, क्योंकि मैच फिट होना बहुत ज़रूरी है।
हसनैन डेथ ओवर्स में आके यॉर्कर्स अच्छी कर सकते हैं, शुरू में 2 ओवर, जैसे सरफराज हमेशा 2 ओवर करवा के डेथ ओवर में लाता था, तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। तो लेकिन शनवारी की एक नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि जो उसका बॉल अवे निकलता है, नया बॉल, वहाँ पर ये कि वो आउट कर सकता है, और शुरू में अगर वो नवाज से करवाते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है इन तीनों का। सरफराज अहमद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये PSL? देखिए सरफराज के लिए ऑब्वियसली हर मैच उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही वांट्स टू बी अ बैक इन अ T20 टेस्ट और ODI उसके अंदर। अब PSL की परफॉर्मेंस ही उसको डिसाइड करेगी कि किस नंबर पे उसको किस फॉर्मेट के अंदर लाया जाएगा। तो सरफराज पे प्रेशर तो बहुत होगा, लेकिन सरफराज इस प्रेशर से काफ़ी गुजर चुके हैं, तो आई एम श्योर ही विल डू वेल। कहाँ खेलते हुए नज़र आते हैं आपको, किस नंबर पे खेलेगा? 4 नंबर पे खेलेगा आसिफ भाई, जो जितना मुझे पता लगा है, जो मेरी बात भी हुई है जराए से, तो उन्होंने कहा कि 4 नंबर पे ही सरफराज खेलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट उसको नंबर 4 ही मिला है उसको। यानी बतौर बैट्समैन, विकेट कीपर हम देख सकते हैं कराची किंग्स और रिजवान उनके साथ नहीं है। रिजवान को वो खिलाते भी नहीं थे, जब वो होते थे तो चैडविक वॉल्टन खेलता था। तो कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन देखिए, कराची किंग्स की अगर बात करूँ तो डिपेंडेबल बाबर आजम के डिपेंड करेगा, क्योंकि इनिंग उसने बनानी है और उसने 20 ओवर खेलने हैं। शर्जील भी क्योंकि शर्जील भी उनके साथ है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बाबर की से बात करूँ, बेसिकली वो पूरा मैच लेके चलेगा, जो उसको रोल उसके कोचेस ने दिया हुआ है, जो उसके इंटरनेशनल T20s में है, वो उसको पूरा करेगा। शर्जील जो एज यूजुअल शर्जील अपनी जो मास्टर ब्लास्टर के लिए मशहूर है, वो उसी तरह से गेम खेलेंगे। अब नीचे नंबर्स पे इनको देखना है कि इनिंग्स बनाने वाला कौन है। चैडविक वॉल्टन भी है, उसकी इनिंग्स भी हमने देखी है, अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो वो एक हमारे इनके सरप्राइज पैकेज हो सकता है। उसके अलावा कोयटा में बैन कटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनका, और आज़म खान भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी टीम का। अब मुल्तान में आ जाए, मुल्तान ने एक तजुर्बा किया है या क्या किया है, और उसका एक नतीजा भी निकला है, उस पर भी मैं पूछूंगा आपसे। शान मसूद इज़ नो मोर द कैप्टन, रिजवान को कप्तान बना दिया। देखिए फॉर्म से फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो उसकी कैप्टनसी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में देखी थी नेशनल T20 के अंदर, ऑब्वियसली वो उसको उनको शायद वो मोरल उनका हाई होगा, क्योंकि शान पे शायद थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। वो शान एज अ बैट्समैन अगर खेलेंगे तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। खेलेंगे आपके ख्याल में? अब खेलेंगे, मैंने इसीलिए बोला खेलेंगे, तो वो भी अभी क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि रिजवान से तो ओपन ही करवाई जाएगी, क्योंकि जो रिजवान की फॉर्म चल रही है, तो वो कोशिश यही करते हैं, कोई भी टीम, चाहे फ्रेंचाइज की टीम हो या अभी कंट्री की टीम हो, जो उसकी फॉर्म है उसको उसी नंबर पे खिला के परफॉर्म करें। और ऑब्वियसली क्योंकि शान मसूद पे प्रेशर अब इसलिए आ गया है, क्योंकि अब अगर 1 या 2 मैच में नहीं होगी तो फिर बेंच हाजिर है। शाहिद अफरीदी भी हैं, सुहेल तनवीर भी हैं, उनके अलावा इमरान ताहिर भी उनके पास हैं, उस्मान कादिर भी उनके पास हैं। उस्मान कादिर की जगह बनती नज़र आ रही है 2 लेग स्पिनर्स में, शाहिद और इमरान ताहिर। देखिए आसिफ भाई, डिपेंड करता है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर, क्योंकि 4 अलाउ हैं, अब ये किस 4 से जाते हैं। 4 क्या ये 2 बॉलर 2 बैट्समैन से जाते हैं, या 3 बॉलर 1 बैट्समैन से जाते हैं, तो फिर हम इनकी स्लॉट वो खाली होगी कि क्या ये उस्मान कादिर को जगह मिलती है नहीं मिलती। मेरे ख्याल में उस्मान कादिर को जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये परफॉर्म करते हुए आ रहा है, आपके इंटरनेशनल टीम से परफॉर्म करते हुए आ रहा है और इस वक्त फॉर्म में है, तो ये अगर तीनों ही खेलते हैं ज़बरदस्त हो जाए। चलें ताहिर से और बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान में एक और हैरत अंगेज़ चीज़ कही है या हैरतनाक एक चीज़ हुई है, उस पर मैं बात करूंगा। एकदम से एक तब्दीली आई है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ताहिर खान मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे मूड में हैं, कुछ फ़ोन भी चेक कर रहे थे। मैंने सवाल इनको बता दिया था कि अगला क्या होगा। ताहिर, जो मुल्तान सुल्तान में एक और चीज़ हुई कि उनके जो पहले 2 उनके ओनर्स थे, आलमगीर तरीन और अली तरीन, अब आलमगीर तरीन पूरी जो भी शेयर्स हैं उसके मालिक हैं और अली तरीन अलग हो गए मुल्तान सुल्तान से। ये क्या इशारा करता है? आसिफ भाई देखें, इशारे तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप एक इशारे के 10 मतलब ले सकते हैं। क्योंकि अली तरीन को ज़्यादातर इस दफ़ा देखा गया था कि वो जो सदर्न पंजाब की टीम थी उसमें ज़्यादातर वो नज़र आए हैं, डोमेस्टिक में हर जगह पे नज़र आए हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है शायद आपस में इनकी कोई बातचीत हुई होगी कि यार मैं ये रीजन देखता हूँ, आप फिर ये फ्रेंचाइज संभालें, क्योंकि फ्रेंचाइज और रीजन में दोनों में बड़ा फर्क होता है और दोनों ही प्रेशराइज जॉब है। रीजन में भी तो पैसे उन्होंने लगाए ना, ऑब्वियसली रीजन उन्होंने खरीद लिया, तो हो सकता है वो रीजन वहाँ चलेंगे, तो वो क्योंकि उनको फर्स्ट क्लास के हर मैच में मैंने देखा, जब भी सदर्न पंजाब का मैच हुआ अली तरीन वहाँ मौजूद होते थे। अली तरीन उसमें भी नहीं गए थे, जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें भी वो वहाँ मौजूद नहीं थे। हैदर अजहर जो उनके CEO हैं वो हैं।
उसके अलावा आलमगीर तरीन साहब हैं और बाकी उनकी टीम के जो भी लोग हैं, एंडी फ्लार की सूरत में एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आपको नहीं लगता कि शान के जाने की वजह से नहीं हुआ ये? देखिए कप्तानी से जाने ये तो वक्त के साथ पता लग ही जाएगा, क्योंकि अगर कैप्टनसी के साथ और शान की कैप्टनसी से ये चीज़ इंडिकेट करती है तो ये छुपी तो नहीं रहेगी आसिफ, आज नहीं तो कल ये सामने आ जाएगी। चलें आ जाएं लाहौर कलंदर्स, बेन डंक, उसके अलावा हमारा लेफ्ट आर्म शाहीन आफरीदी और भी बहुत दिलबर सारे हुसैन, लोग, दिलबर हुसैन, हारिस रऊफ को हम देखेंगे तो लाहौर और राशिद खान, राना फवाद जबरदस्त। वैसे राशिद खान से राना फवाद सही आपने लिंक नहीं है फवाद, राना फवाद साहब का एक मिजाज होता है, मज़ा आता है। राशिद खान क्या पूरा खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी सीरीज भी लगी हुई है आगे। आसिफ इसी तरह क्रिस गेल जो ग्लैडिएटर्स में हैं उनकी भी सीरीज लगी हुई है, वो भी शायद पूरा नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि ये आसिफ भाई बड़ा सेटबैक होगा कि अगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाते, पूरा T20 आपका ये PSL नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक कॉम्बिनेशन आपने पहले से प्लान किया होता है वो फिर आगे इन द एंड मिडल ऑफ द पार्ट जहां से आपकी टीम को लिफ्ट होना होता है वहां आपके मेन प्लेयर चले जाते हैं, तो फिर आप दोबारा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो वो टाइम जा सकता है। लेकिन राशिद खान की मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने जब आगे जाके जो एक सीरीज खेलनी है वहां पर भी तो आसिफ भाई बायोसिक्योर बबल में जाना है ना उन्होंने, एटलीस्ट 5 दिन 7 दिन 8 दिन में, तो क्या खाली क्या ये 2 या 3 मैच ही खेलेंगे? शुरू के 2-3 की अवेलेबल होंगे, क्योंकि उन्होंने तो फिर फ्रॉम द स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन करना है। तो ये एक सवालिया निशान होगा लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि फिर स्पिनर इनके पास वो वाली क्वालिटी का नहीं है जैसे राशिद खान है। अच्छा जी, और आ जाए ज़ल्मी के अब इस दफ़ा वो अपने डैरन सैमी अब कोच हैं। डैरन सैमी नहीं जा रहे ज़ल्मी से को छोड़ के कहीं, वो मेरे ख्याल से उनके सीज़न दर सीज़न उनके ज़ल्मी के साथ ही रहेंगे। आसिफ भाई ऑब्वियसली ही इज़ द करैक्टर हु चेंज द मूड, और पाकिस्तान में तो जितना प्यार उनको दिया है और जो उनके फैंस पाकिस्तान में बने हैं, तो शायद ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने फैंस बने हों, और उन्होंने दिखाया भी, परफॉर्मेंस भी की है। ये कैरेक्टर है, उसने यहाँ नहीं दिखाया। 2016 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जो इंडिया में उन्होंने तकरीर की थी, वो एक अलग कैरेक्टर है सैमी। आसिफ भाई देखें ना, एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस, और फिर इस तरह सा लाइवली पर्सन आपके साथ जब बैठा होता है तो यंगस्टर्स के पास ज़बरदस्त मौका है उनसे एक्सपीरियंस हासिल करने। वहाब रियाज एज कैप्टन ऑफ ज़ल्मी, वहाब रियाज एग्रेसिव कैप्टन होगा, क्योंकि वो खुद फास्ट बॉलर है और ही नीड टू एग्रेसिवनेस, और ज़्यादातर हमें डिपेंड करते हुए नज़र आए हैं ज़ल्मी पेसर्स पे। हम अगर लास्ट 5 एडिशंस में जाएं, लेकिन इस दफ़ा उनके स्पिनर्स भी उन्होंने लिए हैं, तो ये स्पिनर्स को भी लेके किस तरह से ट्राई आउट करते हैं, क्योंकि अबरार की अगर मैं बात करूं, मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार इनके पास मौजूद है, तो ये एक अबरार एज अ मिस्ट्री स्पिनर ओके अमेजिंग कैटेगरी में वो सरप्राइज एलिमेंट होगा दूसरी टीमों के लिए। बिल्कुल। कराची किंग्स में थे वो, तो उन्होंने इस्तेमाल तो उनको किया नहीं था। फर्स्ट क्लास सीज़न में ठीक परफॉर्मेंस उनकी रही, कम खेले, लेकिन सेकंड ग्रेड जो उन्होंने खेला है, सेकंड 11 उसमें उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही। लेकिन उसकी वजह है आप, क्योंकि आप बहुत करीब से आपने सीज़न देखा, दोनों टीयर्स में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बॉल्स चेंज थी। Exactly. एक जगह कूकाबूरा सबको पता है, एक जगह एसिलीन का बॉल, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क था बॉलिंग के अंदर। तो ये इससे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगा रहे होंगे, मुझे यकीन है कि नहीं लगा रहे होंगे। अब कौन सी टीम रह गई भाई? कराची किंग्स तो आपने कर ली। हाँ जी, सारी टीम्स हो गई, तकरीबन सारी टीमें सारी टीमों को कवर कर लिया हम लोगों ने। तो अभी ये बैलेंस नज़र आ रही हैं अभी, और पेपर पे तो अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, तो बैलेंस ही है टीम। आसिफ भाई बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन ज़्यादातर टीमों का अगर देखें ना, लास्ट 3-4 साल में स्पिनर्स इस दफ़ा ज़्यादा हमें नज़र आएंगे। हर टीम में 3-2 स्पिनर, 2 लेग स्पिनर, 1 ऑफ स्पिनर, 2 लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर, ये मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमें नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये इस दफ़ा क्लियरली इंडिकेशन है कि डिपेंड करेगी स्पिनर्स पे ज़्यादातर टीमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड रह गई है, तो उसको उसके साथ कर लेते हैं। हसन अली क्यों चले गए? आपने कहा था पेसर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हसन अली चले गए ज़ल्मी से, पहले सीज़न से वो साथ थे। आसिफ भाई उनको एक जो पॉलिसी थी, क्योंकि आप 3 साल के बाद आपने एक प्लेयर को छोड़ना होता है, तो ऑब्वियसली, और उनकी पहली पिक इस्लामाबाद की थी, वो तो उनको तो फिर वो जो उनको एक रोटी गैंग जो उनको कंप्लीट करना था, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है। रोटी गैंग बेसिकली उन्होंने नाम दिया है अपनी फ्रेंडशिप को, जो शादाब, फ़हीम और हसन अली, ये अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन होगा आसिफ भाई इस PSL के अंदर, क्योंकि शादाब अगर मेंटली तौर पे अपने आप को मैच प्रैक्टिस में ले आते हैं वापस, तो उनके भी क्योंकि प्रेशर है, उनको भी टीम में वापस आना है। फ़हीम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं अच्छा, वो भी, और हसन अली का जो एलिमेंट है इस वक्त, जो फॉर्म लगी हुई हसन अली की, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग,
वो और बड़ा character, जबरदस्त जिस तरह और जो करेक्टर है मुझे तो एग्जैक्टली ऐसा लगता है आगे चल के इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हो सकते हैं वो, पर्सनली। कोई कुछ पता नहीं है क्योंकि अगले चले अगर मैं आपको अगले सीजन में वो कप्तान होगा। चले देख लेते हैं, ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है क्योंकि शादाब ने अगर ये सुन रहे होंगे तो शादाब ने पहले ही कर देना है असल कर चीज़ का। शादाब है। और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली वहाँ है, आसिफ अली वहाँ है, अच्छी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छी टीम है इनकी। 2 मरतबा जीती है इफ्तिखार अपनी। वापस चले गए वहाँ पर, हाँ। तो ऑब्वियसली क्योंकि इफ्तिखार और आसिफ अली दोनों ने वापस टीम में जगह बनानी है, तो इन दोनों का क्योंकि जो ये बेसिकली जो आपके पास पावर हिटिंग है ये दोनों के पास है। रोमान रईस आपने देखा है खेलते हुए, वो अब बॉलिंग कंसल्टेंट है वहाँ पर, कैसा फैसला है ये? आसिफ भाई देखिए, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उनके सोच समझ के किया होगा, अच्छा फैसला है क्योंकि रोमान से पूछा गया होगा कि यार अवेलेबल हैं, खेलने के फिट हैं, और जो मेरी भी पर्सनली रोमान से बात हुई तो ही सेड कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ, तो इसीलिए उनको इस उसमें डाला गया रोल में। एक डिफरेंट रोल है क्योंकि कोचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट है। खेलना और समझाना और एजुकेट करना वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो अब देखना है कि रोमान के लिए बड़ा प्रेशराइज ये होगा। कहने वाले कहते हैं कि मोहम्मद समी इस रोल में ज़्यादा बेहतर होते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए होना चाहिए था समी को भी, आप रोमान के साथ समी को भी रख लेते। समी ने इतनी परफॉर्म किया है, कैप्टन रहे हैं, जो लास्ट सीजन में समी जब खेले कप्तान था और आपने बिल्कुल ही ब्रेकआउट कर दिया। वैसे तो अब हमारे साथ वेटरन्स खेल रहे हैं वो, लेकिन स्टिल ही स्टिल नहीं वेटरन्स तो खेल रहे हैं वो एग्जैक्टली। नहीं वेटरन्स वो खेलते रहे, उसमें कोई एतराज़ है, लेकिन क्या वो कोच नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने लेवल 1 कोर्स भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और बेसिकली चीज़ क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, और समी जैसा एक्सपीरियंस वहाँ पर उनके पास मौजूद नहीं है। चलें ये तो चलता रहेगा। बाकी हम बात करेंगे जो ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम, तो डोमेस्टिक सीज़न भी अभी ख़त्म हुआ है। ताहिर आपने बहुत करीब से देखा, और हम कोशिश करते हैं कि हम बात करें डोमेस्टिक सीज़न पे। कोचेज़ को बुलाया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, कई दिन तक चली, 1 दिन से ज़्यादा मुलाकातें चली नदीम खान साहब के अंडर। अब आपके ख्याल में क्या होगा नेक्स्ट सीज़न से पहले, क्या तब्दीली हो सकती है? आसिफ भाई देखें, जो पूरा ओवरऑल निकला है उसके बाद कंक्लूजन तो यही निकली, क्योंकि काफ़ी प्लेयरों से हमने भी सुना है लोगों से कि क्योंकि कोचेस पे कोई प्लेयरों के साथ बड़े आर्गूमेंट्स हुए हैं, बड़ी बदमजियाँ हुई हैं, जानबूझ के बिठाया गया है इस तरह से, तो वो सब सारी चीज़ें, लेकिन आई होप कि अच्छा हो। आई ऑल्सो होप कि अच्छा हो। ताहिर खान ने ख़त्म की अच्छे नोट पे बात, मैं भी ख़त्म करता हूँ। प्रोग्राम में आपने 3 हिस्से देखे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ क्रिकेट साउथ अफ्रीका वो हमारे साथ थे, उसके बाद उमर गुल द बॉलिंग कंसल्टेंट बॉलिंग कोच ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और हमारे अपने ग्लैडिएटर ताहिर खान साहब को भी आपने सुना, मुख्तलिफ चीज़ों पर उन्होंने बात की। द वेटरन क्रिकेटर इस वक्त करंट पाकिस्तान की वेटरन टीम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। इसी नोट पे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।